Hello friends, today we are going to cover one very interesting topic which is CFA versus MBA. Friends, this is at the heart of most of the conundrum which aspirants in finance have कि हमेशा दिल में ये कश्मकश रहती है कि सर CFA करें कि MBA करें, and hence I thought I will have this very short video explaining you in detail, right, what are the various aspects around these questions and then what are the real answers which will give you a lot of clarity. So let's get started, friends. These are the 5 key aspects. Sorry about the typo. It says 3 key aspects, but it is 5 key aspects which we are going to discuss today. One is MBA versus CFA the right comparison? कि यार ये comparison भी ठीक है क्या? पहले तो वो समझें. Number 2, how is the return on investment of CFA versus MBA? Because दोनों ही महंगे एग्जाम है दोस्तों. So hence you should always know कि return on investment, कि आज पैसे डालने से, क्योंकि इनका फायदा in the future you are going to see. So what is the return on investment and how is the return of investment of CFA versus MBA? Number 3, we are going to see how much time will be required to complete both. And number 4, we will look at should you do CFA along with MBA? Does that make sense or not? And lastly, friends, we are going to see that can premium finance profiles like investment banking and hedge fund management roles, etc., can that be done without MBA? Right? So let's get started. So friends, before we get started, ensure that you are watching the video till the end, because we are also in the end going to pick up some of the queries which we have received from you, because as I have promised, I look at your queries very intentfully. There is a form which is a free CFA mentorship form which is pinned as the first comment or in the description. You can post your queries from there, and in the next sessions I will go through it and answer it for you here, right? So do watch the video till the end. A lot of your queries will also get answered. And lastly, just ensure, friends, that if you are liking our channel, just ensure that you like this video as well. You share this with your friends as well so that more people can benefit from it. And of course, you should subscribe so that you don't miss out on any such videos in the future. Now, friends, first query is MBA versus CFA the right comparison? And trust me, friends, it is the biggest mistake which most of the aspirants do. It is absolutely a wrong comparison. Why? Because, दोस्तों, MBA is a degree, CFA is a brand. समझिए इस चीज को. When you are going out in the market, the number one thing which is going to help you succeed is the brands which you have on your profile. जैसे आप सोचिए, आप बॉम्बे गए और अगर आप कपूर खानदान से हैं, खान खानदान से हैं, तो आपको जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. अगर आप गावस्कर के बेटे हैं तो रोहन गावस्कर को जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि उसके पीछे एक ब्रांड है. In cricket, if you have played in IPL, you will have a higher probability of getting selected in the Indian cricket team. So दोस्तों, ये जीवन की सच्चाई है that if you have a brand, opportunities will open up for you. Is MBA a brand? नहीं है ना भाई. A degree. Which college gives you this degree decides the brand. On the other hand, CFA is a brand. The institute which gives you a CFA degree, its name is CFA Institute, and it has a global brand which has been established in the last 60 years. So hence, friends, the right comparison is कि क्या मैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट से MBA करूं या CFA करूं, ना कि केवल MBA करूं. क्योंकि if you just do randomly MBA, my friends, is a degree. It has no brand till the time it is given by a reputed institute. So ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए. एप्पल्स वर्सेस ऑरेंजेस का कंपैरिजन नहीं करना, राइट? सो हेंस, यस, इफ यू आर गेटिंग इनटू अ गुड प्रीमियर इंस्टीट्यूट एंड देयर इज अ चॉइस ऑफ CFA, यस, you can choose either of them. बट यहाँ पर एक छोटा सा कैविएट ये है दोस्त कि प्रीमियर CFA इंस्टीट्यूट में जाने की आपकी प्रोबेबिलिटी टू गेट इनटू अ प्रीमियर MBA इंस्टीट्यूट इज 1%, क्योंकि उतनी सीटें ही नहीं. On the other hand, your probability to get 2 levels of CFA is almost 25%. 40% है level 1 और 50% है level 2 का एग्जाम का पास रेट. तो मोटा मैं प्रोबेबिलिटीज के कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, मुझे आप कोर्स पढ़ेंगे तो आप प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे. बट दोनों level 1 और level 2 निकालने की प्रोबेबिलिटी 25% है. 40% into 50%, which is approximately 20%. तो 20% है प्रोबेबिलिटी आपकी 2 लेवल्स ऑफ CFA निकालने की. आपकी प्रोबेबिलिटी प्रीमियर MBA इंस्टीट्यूट में जाने की 1% है. तो यू कैन क्लियरली कंपेयर 1% वर्सेस 20%, और अब आप कंपैरिजन और अब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि दोनों में किसी में भी आप जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट MBA
प्रीमियर एमबीए इंस्टीट्यूट में 1% प्रोबेबिलिटी है, 2 लेवल्स ऑफ सीएफए, और मैं आऊंगा कि क्यों मैं 2 लेवल्स ऑफ सीएफए खाली बोल रहा हूँ जबकि 3 लेवल्स हैं, तो 2 लेवल्स ऑफ सीएफए निकालने की प्रोबेबिलिटी 20%। तो आप 1% के अपॉर्चुनिटी में जाना चाहते हैं कि 20% के अपॉर्चुनिटी में जाना चाहते हैं, वो आप डिसीजन आपका है। क्लियर? अब आते हैं सेकंड क्वेरी में कि सर दोनों ही महंगे कोर्सेज हैं, सीएफए करेंगे तो उसमें भी आपको 2-3 लाख रुपए लगेंगे, आप एमबीए करेंगे तो एमबीए में आपको जो है लगभग 20-30 लाख रुपए लगेंगे। अगर मैं अपने एमबीए इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लूँ तो आज आईएम इंदौर से मैंने एमबीए कर रखी है। अगर आज आप इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट से एमबीए करना चाहते हैं तो आपको मोटा मोटा 30 लाख रुपीस लगेंगे, जो इट विल कॉस्ट यू 30 लाख रुपीस। ऑन दी अदर हैंड इफ यू वांट टू डू सीएफए इट विल कॉस्ट यू 2-3 लाख रुपीस। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एमबीए एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में करने के लिए 10 गुना ज्यादा पैसे लग रहे हैं, 2-3 लाख रुपए वर्सेस 30 लाख रुपीस। सो 10 गुना ज्यादा पैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से एमबीए करने में लग जाएंगे। अब आप ये मत बोलेगा नहीं सर गलगोटिया यूनिवर्सिटी में तो 10 लाख का हो जाता। भाई अभी बात किया ना, नॉन ब्रांडेड जिस एमबीए इंस्टीट्यूट का कोई ब्रांड नहीं है उनका कंपैरिजन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एक ब्रांड की बात कर रहे हैं। आप 5-10 लाख रुपए का एमबीए कहीं भी टीयर 2 टीयर 3 से कर लेंगे तो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं खोलेगी। कृपया करके अपना पैसा बर्बाद ना करें। तो प्रीमियर एमबीए इंस्टीट्यूट 20-30 लाख रुपए लग रहे हैं, सीएफए करने में आपके 2-3 लाख रुपए लग रहे हैं, तो 10 गुना प्राइस का डिफरेंस है। अपॉर्चुनिटीज में मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, आई हैव सीन दैट इन द लास्ट 10-12 years of my experience, I have seen enough friends and peers who have gotten into similar roles like me, have gotten into similar salary progression like me by just doing CFA and not even having MBA. So clearly यार Premier Institute और CFA से आपको almost similar opportunities आपके लिए खुलती हैं, बस फर्क ये है कि CFA 1/10 दी कॉस्ट में हो जाता है and hence ROI of CFA is 10 times better than the ROI of MBA. ओके इसीलिए आजकल भारी मात्रा में लोग ग्रेजुएशन करने के बाद आफ्टर देयर इंजीनियरिंग एटसेट्रा दे आर डूइंग सीएफए बिकॉज द आरओआई इज सो गुड। ओके थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ? बड़ा सिंपल है, एमबीए में तो हमको टाइम ऑलमोस्ट क्लियर ही है, जनरली जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट के एमबीए होते हैं इट टेक्स 2 years ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड फ्रेंड्स रिमेंबर दिस दैट इन सीएफए इवन दो देयर आर 3 levels, 2 levels of CFA are sufficient to start your career, right? Because second level of CFA is the toughest. If you have gotten past the second level, automatically the finance industry recognizes कि आपका बहुत अच्छा आपके पास brand है 2 levels of CFA का, and hence by design you will see lot of opportunities open up. तो इसीलिए I recommend all my aspirants कि आप 2 levels ही करिए। मैंने by the way 3 levels किए हुए हैं, but again मेरी गलतियों से आपको सीखना है। तो 2 levels of CFA are sufficient. Now level 1 takes you 6 months of preparation. 3 मोटा मोटा 1.5 घंटा per day if you put, then in 6 months your entire preparation gets over. To know more about CFA level 1 preparation, you have the link in the description, which is my course which I have prepared for CFA level 1. You can click and see all the details along with a lot of video lectures and demo lectures which will help you understand कि CFA level 1 किस तरीके से prepare करना है. I'm sure you are going to like it. आप उसको enroll भी कर सकते हैं. So CFA level 1 1.5 घंटे का समय 6 महीने के लिए लगाएंगे, आपका CFA level 1 हो जाएगा. Level 2, because it is toughest, you need to spend 3 hours on a daily basis for 9 months. So 6 महीने level 1 complete करने में, 9 महीने आपके level 2 करने में. So 2 levels of CFA takes you 15 months of time. So on one hand, MBA will take 24 months of time, and on the other hand, CFA 2 levels will take you mota mota 15 months of time. So this also should be known to you. Okay, perfect. The fourth question is, sir, should I do CFA along with MBA? So friends, hence CFA you should know that it is the gold standard in the world of finance. So what I am seeing now is that even students who are in the Premier Institute, even they are doing CFA. Take a case in point for myself, that when I got into IIM Indore, the first words of wisdom which I got from my seniors is कि भाई अगर if you have to create a career in finance, then you should do CFA. Right? So hence, even kids in Premier MBA institutes are doing CFA because CFA today, friends, has become like a hygiene. कि अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो ये एक तरह से मोहर है. It is like a gold standard on your back, which says that which tells the recruiter that yes, you are really intentful about creating a career in finance, and hence it is like a hygiene. It is like a gold standard. तो along with MBA अगर आप कर रहे हैं, MBA सबसे पहले तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से करना है. अगर आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं MBA और सोच रहे हैं कि मेरा फाइनेंस में
करियर बन जाएगा तो एकदम बनेगा, बट आपको CFA तो हाइजीन के लिए करना ही पड़ेगा। नॉन प्रीमियर इंस्टीट्यूट से MBA कर रहे हैं तब तो आप अपने पैसे में आग लगा रहे हैं, वो आग अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप डेफिनेटली लगा सकते हैं, बट नॉन प्रीमियर MBA इंस्टीट्यूट से तो ऐसे भी फाइनेंस के दरवाजे नहीं खुलते, तो वहाँ भी CFA करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग और आखिरी सवाल है कि कैन आई गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स और हेज फंड मैनेजमेंट रोल्स विदाउट MBA? द आंसर इज यार नो, राइट? कि यार अगर आपको प्रीमियम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या हेज फंड मैनेजमेंट रोल्स में जाना है तो बिना MBA के इट इज डिफिकल्ट, दैट टू MBA ऑफ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट। वहाँ दोनों लगते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और हेज फंड मैनेजमेंट रोल्स बहुत ही नीश प्रोफाइल्स होती हैं, तो यहाँ बहुत कम ओपनिंग्स होती हैं, और यहाँ पर यू रियली योर ब्रांड, द नंबर ऑफ ब्रांड्स ऑन योर प्रोफाइल हैज टू बी रियली गुड। उसका रीज़न क्या है दोस्त, कि ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज होती हैं ये क्लाइंट्स को जाकर पिच करती है कि देखिए सर, हमारे साथ जो बच्चे या हमारे साथ जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनके पास कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने CFA कर रखी है, IM से MBA कर रखी है, IIT से इंजीनियरिंग कर रखी है, तो सर ये बहुत ही तोड़ू लोग हैं, ये अगर आपके लिए काम करेंगे, ये आपको मर्जर्स और एक्विजिशंस और बाकी बड़ी बड़ी चीज़ें बताएंगे तो आपकी कंपनी को बहुत फायदा हो। सो दीज क्लाइंट्स गेट एक्साइटेड अबाउट दीज ब्रांड्स एंड हेंस दे रिक्रूट दीज कंपनीज। बट फ्रेंड्स, एज्यूम दैट यू डोंट हैव दीज ब्रांड्स, आपके पास खाली CFA, तो क्या इसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए इस प्रोफाइल के लिए? एब्सोल्युटली नो। और यहीं पर आपको समझना है दोस्त कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो ये काम करती है, M&A का काम करती है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के, राइट, IPO के लिए काम कर रही होती है, आपके बाजार से डेट उठाना होता है उसके लिए काम कर रही होती है। तो दोस्त आज की तारीख में यू हैव एनफ यू हैव एनफ सच अपॉर्चुनिटीज इन यंग स्टार्टअप्स। आज जोमेटो के अंदर, ओयो के अंदर, आपके स्विगी के अंदर, राइट, ये जितनी Cast24 के अंदर जितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, इन सब के अंदर यू विल हैव अ M&A टीम, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस टीम। ये टीम्स भी सेम काम कर रही होती है, राइट, ये देख रही होती है कि जोमेटो के लिए कौन सी नई कंपनी वो अक्वायर कर सकते हैं, राइट। तो हेंस ये जो अपॉर्चुनिटीज आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या हेज फंड मैनेजमेंट में मिलती हैं, ये आज यंग स्टेज स्टार्टअप्स में भी मिल सकती हैं, और वहां पर आप पहले अप्लाई करके अपना करियर शुरू कर सकते हैं इन M&A रोल्स में, एंड देन फ्रॉम देयर वंस यू हैव एक्सपीरियंस एज वेल एज CFA, तो अब इन दोनों के ब्रांड के साथ आप एक अच्छे कल को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में, फाइनेंशियल कंपनी में जा सकते हैं। तो दिस कुड बी योर रूट, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपके लिए दरवाजे बंद नहीं होते। अच्छी चीज क्या है, CFA से ये ऑल्टरनेट रूट खुल जाता है और वहां से फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो दीज वेर द टॉप 5 क्वेश्चंस which we decided to answer today। अब क्विकली आपके क्वेरीज ले लेते हैं जो हम लोगों को क्वेरीज मिली हैं। साहिल का अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो आप लोगों को स्क्रीन पे इनकी क्वेरी दिख रही है कि नहीं। साहिल ने एक लंबा सा पैराग्राफ भेजा था, साहिल कुमार पांडे ने, तो मैं क्विकली इनकी पहले क्वेरी पढ़ देता हूँ एंड देन आई विल आंसर इट फॉर यू। इनकी क्वेरी भी वही है कि प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल टाइप के इनको रोल करने हैं। Sahil doesn't want to do an MBA and he wants to just do CFA, but he is confused कि सर without MBA can he get into private equity and venture capital roles? So I just, Sahil, just जो मैं अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए बता रहा था, it will be applicable for you as well. If you want to get into a financial profile, if you want to get into a financial firm जैसे Goldman Sachs या Deutsche Bank या Morgan Stanley, JP Morgan etc., इनके जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के रोल्स होते हैं या बड़े बड़े वेंचर कैपिटल के फॉर्म्स होते हैं, राइट, जैसे नेक्सस वेंचर्स है, मैट्रिक्स पार्टनर्स है, एलिवेशन कैपिटल एक्सेट्रा, तो इन सब में ऑफ कोर्स यार अगर आपको जाना है तो यहाँ तो दोनों, आपका MBA भी होना चाहिए, CFA भी होना चाहिए, दोनों लगता है। खासकर एक प्रीमियर MBA इंस्टीट्यूट ये ढूंढते हैं। बट जैसे मैंने बताया आजकल बहुत सारे यंग स्टार्टअप्स में देर इज अ डोमेन और देर इज अ division which is called M&A division, mergers and acquisition division. You can start from there, gain good experience, and then get into these private equity and venture capital firms, right? So that is one alternate route where without MBA you can get into these roles. Okay, Jay, your question is that as a software engineer you are earning 15 lakh rupees already, so should you pursue CFA without MBA in finance? So first of all, to get into a financial field, as I told you that if you have CFA, it opens up similar opportunities for you, so don't worry about that. आपका दूसरा आई थिंक सवाल है कि सर ऑलरेडी आपकी जो है 15 लाख रुपए सैलरी है, तो क्या इस टाइप की सैलरी और ग्रोथ मिल सकती है? तो जय, आई वुड रादर टेल यू दिस दैट एक जमाने में डायनासोर को लगता था कि वो सबसे ताकतवर जो है जानवर है जंगल के अंदर, एंड लेटर इट रियलाइज दैट सडनली इट बिकेम ऑब्सोलीट। क्यों? क्योंकि उसने रियलाइज ही नहीं किया कि दुनिया के साथ, दुनिया जैसे जैसे चेंज कर रही है वैसे वैसे उसको भी चेंज करना है। तो एक दो मीटियोर ने हिट किया, सारा डायनासोर गायब हो गया, दे बिकेम ऑब्सोलीट, राइट? सो सिमिलरली जय, हियर यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड that I personally believe, और आप तो इस डोमेन में हो, so you would know better than me, that
software engineer going forward will face lot of downward pressure in terms of salary growths, opportunities, right? Why? Because with AI coming into picture, a lot of roles in the software engineering domain, coding domain, testing domain will continue to get obsolete, right? Because with AI, a lot of work on algorithms, on higher thinking, etc., which warranted a lot of high-skilled software engineers, right, will continue to get obsolete. And hence, in that case, friends, as I keep telling you, Jay, that जो फाइनेंस के कोर्सेज हैं, जो फाइनेंस के रोल्स हैं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस थ्रू टेक्नोलॉजी बिकॉज दीज रोल्स ऑल्सो दीज आर फ्रंट एंड रोल्स, कस्टमर एंड क्लाइंट फेसिंग रोल्स. और चूंकि कस्टमर एंड क्लाइंट फेसिंग रोल्स में ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, अलॉन्ग विद आपका जो भी इंटेलेक्ट या फाइनेंशियल नॉलेज है वो सब इन्वॉल्व होता है. इसीलिए इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस फाइनेंशियल रोल्स इन फ्यूचर एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. Beyond salary, you should also look to transition into these front-end roles of finance because they will be difficult to, difficult to replace through technology. As far as your salary is concerned, yes, yeah, after 2 levels of CFA, you are expected to get into a similar salary range which you are right now. So don't worry कि आप एक software engineer से finance में आप start कर रहे होंगे तो आपको scratch से start करना पड़ेगा. Generally after level 2, you get anywhere between 7 to 13 lakh rupees. In your case, it is 15 lakhs. So, mota, you will be in similar range, right? Great. Lastly, we have Nilanjan C. He has asked that he comes from a civil engineering background. Can he divert his career in finance? तो पहले तो निरंजन, कैरियर की स्पेलिंग आपकी गलत है, बट अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो एकदम भी आपको चिंता नहीं करनी है. अब टेक्नोलॉजी आने, AI आने के बाद ये सब स्पेलिंग जिनकी अच्छी थी ना, वो जो बहुत गुमान मारते थे कि मेरी इंग्लिश में स्पेलिंग बहुत अच्छी है, उसका कोई फायदा नहीं. सो कैरियर CAREER होता है जो आप पूछ रहे हैं, बट कोई फिक्र नहीं है, वो आपकी सब अंग्रेजी जो है AI ठीक कर दिया करेगा आगे से. बट आपका मुद्दा मैं समझ गया. तो देखो यार, यहाँ तो मैं अपना ही एग्जांपल दे सकता हूँ. जस्ट लाइक यू, आई वाज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. आई वेरी सीमलेसली ट्रांजिशनड इनटू द फाइनेंशियल रोल्स, राइट, बाय वर्च्यू ऑफ माय CFA, राइट. तो आप भी वो कर सकते हैं, क्योंकि यार देखो, हमें जितना भी पैशन हो फाइनेंस को लेकर, अगर उस पैशन को हम इंटेंट से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ना, इंटेंट मतलब होता है कि उस पैशन के अगेंस्ट मैंने कुछ दिखाया. मैंने बोला कि मैं क्रिकेट में बहुत पैशनेट हूँ, तो रोज सुबह 5 बजे उठ के मुझे प्रैक्टिस पे जाना है ना. सिमिलरली इफ यू से आई वांट टू क्रिएट अ करियर इन फाइनेंस, बट खाली ऐसे मुट्ठी बंद करके भारत माता की जय बोलने से तो नहीं होगा. जाके वोट डालना पड़ेगा, तभी भारत माता की जय हो पाएगी, राइट. तो सिमिलरली हियर ऑल्सो, इफ यू आर पैशनेट अबाउट फाइनेंस, देन निरंजन, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट. तो एक बार आपके पास वो CFA आ जाता है ऑन योर रिज्यूमे, तो ऑटोमेटिकली वो डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है. एंड आई हैव सीन नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, thousands of other students here who I have taught so far, they come from varied backgrounds. BA किया हुआ है बहुतों ने BCA किया हुआ है, किन्होंने MA in economics किया हुआ है, किन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है आपके जैसे मेरे जैसे. एंड दे ऑल, बहुत लोग मेडिसिन से आते हैं, बहुत लोग आपके फार्मा प्रोफाइल से आते हैं, एंड दे आर एबल टू गेट सीमलेसली ट्रांजिशन इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस बाय वर्च्यू ऑफ देयर CFA brand. So you can do that, right? So friends, that's it for today, friends. In case you have any queries, you have the form link in the description and the comment. Also, friends, if your why of CFA is clear, तो हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं. I have prepared this entire course in a very easy to understand, fun manner. There are a lot of practical examples, Excel you will learn along with the CFA Level 1 curriculum. The link of our course is in the description. You can click there, go through the lot of demo lectures, see how I have taught some of these classes. If you like it, do enroll and get started, and you will realize in just 6 months, you will cross the line and start building your career in finance. So thank you so much, friends, right? That's all we have today. I'll see you on the other side very soon with altogether a new video. Thank you. Bye-bye. Take care.